Welcome back to the channel. You are live now. Welcome to the Commerce Stream channel, and we will be focusing on various points today. Today is one of the crucial days of my journey since last 5 months. Reason being, in those last 5 months, there has been some lack of energy, and today I feel very cherished and very positive with all my control strength. And this is the day, today is 27th May, which is going to be remarkable day in my future life to come. And after 3 or 5 years, when I will see this video again, I will feel very cherished that uh, the rate of my pace of speaking and my all the contemporary skills have increased a lot in these 5 months. And this is the fifth day, and I am very cherished and I'm very impoverished for this. Okay, let's begin with the commerce MCQ series questions. This MCQ series question, I'm side by going to name it as the web series, as the series which is very crucial for the upcoming commerce examinations. So we have one important question: female entrepreneurs. Female entrepreneurs differ from male entrepreneurs because they do not have goal orientation in their mind. Then next we have men are often more confident and less flexible and more tolerant, which is not true in my sense because men are not flexible, men are more rigid in nature. Then next important question we have of small business. So when we are talking of small business, you should be sure what all things we are going to consider when we are talking about small business concern. So when we talk about small business concern, it is a concern which of the following shows the process of creating something new, that is innovation. Then next we have entrepreneurship was distinguished from capital provider. In 18th century, it was differentiated. Then next is having less than 50% of equity share in an international venture is called as minority interest. The activity which occurs when the new venture is started is called departure point. Next, we have SPA, that is Small Business Administration. Next important question we have with us, that is Gazelles. Gazelles are the firms with high growth rate. That is the most important question. So, what are Gazelles? Gazelles की बात की जाए ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनका हाई ग्रोथ रेट होता है और हाई ग्रोथ रेट के साथ साथ इसे हम फास्ट ग्रोथ रेट यंग कंपनीज भी कहते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की बात की जाए तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंटिन्यूम लीडरशिप अप्रोच. कंटिन्यूम लीडरशिप जो अप्रोच थी वो किसने दी थी और कब दी थी? कंटिन्यूम लीडरशिप अप्रोच was given by टेनरबॉम एंड शुमिट. टेनरबॉम और शुमिट ने दी थी कंटिन्यूस लर्निंग अप्रोच. और फिर उसके बाद बात की जाए ऑपरेशनल ऑडिट की. ऑपरेशनल ऑडिट को हम इंटरनल ऑडिट भी कहते हैं. फिर हमने बात की है पर्ट की. पर्ट इज प्रोग्राम वैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. और फिर हम बात करते हैं सीपीएम की. CPM is critical path method. That is also most important. Then next we have comparable factors. Comparable factors कौन से होते हैं और वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? Like it includes skill, effort and education. जो कंपेरेबल फोर्सेस होते हैं वो स्किल, एफर्ट और एजुकेशन को इंक्लूड करते हैं. देन नेक्स्ट इज क्वालिटी सर्कल. क्वालिटी सर्कल की बात की जाए क्वालिटी सर्कल की बात की जाए तो ये एक ऐसी टाइप होती है, इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप. ये एक इनफॉर्मल ग्रुप की टाइप होती है क्वालिटी सर्कल. और इसमें क्या होता है, इसमें डिस्कशन होती है और जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं. दैट इज अंडर क्वालिटी सर्कल. देन नेक्स्ट वी हैव द थिंग इज मैस्लो. मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी होती है. तो मैस्लो की यूनिवर्सल डायनामिक थ्योरी है. यूनिवर्सल डायनामिक थ्योरी का मतलब होता है कि कोई भी चेंजेस हैं वो इसमें हमें रिकॉर्ड करने होते हैं. देन वी हैव हर्सबर्ग. हर्सबर्ग का टू फैक्टर मॉडल हमारे पास हम कंसिडर करते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव टू फैक्टर मॉडल के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव विद अस इज CPM. CPM is critical path method. Then next we have MBO. MBO is management by objectives. That is also most important thing to read. That is MBO. Next we have
A Todd check signer. एक हमारे पास होता है टॉड चेक साइनर। टॉड चेक साइनर क्या होता है? इज यूज फॉर इन प्रिंटिंग द स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स साइमल्टेनियसली टू अवॉइड फोर्जरी। दैट इज अ टॉड चेक साइनर, वो हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट की बात की जाए तो जो बिजनेस मैनेजमेंट है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू मैनेजमेंट। कौन सी एक्टिविटी होती है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है जिसमें हम प्री डिटरमिन्ड गोल्स, जो हमारे जो गोल्स ऑलरेडी हमने अचीव करने हैं, वो प्री डिटरमिन्ड गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम जो काम करते हैं दैट इज कमिंग अंडर मैनेजमेंट। और फिर उसके बाद इसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक हमने इसमें एफर्ट्स की ज़रूरत होती है और दूसरी चीज़ है अचीवमेंट ऑफ गोल्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एफर्ट्स हमने लगाने हैं, फिर अचीवमेंट ऑफ गोल हमने करने हैं। दैट इज ऑल जो हम बिजनेस मैनेजमेंट में करते हैं। मैनेजमेंट की बात की है, मैनेजमेंट इज सर्वेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बड़ी होती है, मैनेजमेंट छोटी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा चीज़ें होती हैं और जो मैनेजमेंट होती है उसमें कम चीज़ें होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बड़ी है, मैनेजमेंट कम बड़ी है। सो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वी हैव इज PODSCORB। PODSCORB। सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं? ये हमारे पास 8 चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उस 8 चीज़ों के बाद नेक्स्ट बात हमारे पास आती है, हु इज गिवन द प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, ये प्रिंसिपल किसने दिया है? फ्रेडरिक टेलर ने। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल की जब हम बात करते हैं हेनरी फ्योल की जब हम बात करते हैं उसमें हमें कौन सी चीज़ दी है? हेनरी फ्योल ने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ एक है हेनरी फ्योल, एक है एफ.डब्ल्यू. टेलर। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, जो हेनरी फ्योल है ही इज द पर्सन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। दैट इज ऑल डन। देन नेक्स्ट इज हेनरी फ्योल सजेस्टेड कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो है दैट इज रिलेटेड टू केयर। केयर की बात की जाए, एक रेटिंग एजेंसी होती है जो सारी चीज़ों के साथ डील करती है। केयर इज दी rating agency which deals with different things, that is Credit Analysis and Research Limited। क्रेडिट एनालिसिस और रिसर्च लिमिटेड वो केयर में आती है। जो नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर की बात की जाए, कैन बी इशूड फॉर दी मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 ईयर। जो सीपी होते हैं 15 दिन से लेकर 1 साल के लिए हम उसको इशू कर सकते हैं। दैट इज द कमर्शियल पेपर। फिर उसके बाद बात करनी है हमें ओवरऑल लिमिट कितनी होती है। ओवरऑल लिमिट फॉर द अमाउंट ऑफ कमर्शियल पेपर इज सैंक्शनड बाय द बीओडी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इशू करते हैं कितनी लिमिट के लिए हमने कमर्शियल पेपर्स को रखना है। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि नॉन नेगोशिएबल? कमर्शियल पेपर इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसके अगेंस्ट तुम और कोई चीज़ रख के निगोशिएट कर सकते हो और नेक्स्ट चीज़ें उसके लिए खरीद सकते हो। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर की बात की जाए तो कमर्शियल पेपर क्या सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज के लिए? बिल्कुल। जो हमारा सीपी होता है वो सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज के लिए होता है, सिर्फ उन्हीं के लिए हम कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बात करनी है बैंक गारंटी की। बैंक गारंटी की बात की जाए तो वो फंड बेस्ड है कि नॉन फंड बेस्ड? बैंक गारंटी नॉन फंड बेस्ड होता है, उसके लिए तुम्हें कोई भी फंड रखने की जरूरत नहीं पड़ती। देन नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट।
दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डू। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगली ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट की बात की जाए, ये एक डिमांड असिस्टेंस होती है जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। दैट इज कॉल्ड एज लीगल असिस्टेंस गिवन बाय वन बैंक टू अनदर बैंक। वो आती है इसमें लीगल असिस्टेंस में। नेक्स्ट हमने बात करनी है लीगल असिस्टेंस के बाद। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू, ये बात होगी लीगल असिस्टेंस की। फिर उसके बाद हमने बात करनी है कंपनी की। एक कंपनी अवेल कर सकती है पैसिव क्रेडिट की फैसिलिटी when it holds a confirmed export order placed by overseas buyer or an irrevocable letter of credit in its favor। तो उसको क्या मिलता है? पैकिंग क्रेडिट। उसको जो चीज़ मिलती है दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग क्रेडिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एम बी पी एफ होती है मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस। मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस कितना है? दैट कम्स अंडर एम बी पी एफ। देन नेक्स्ट इज बी सी टी एल, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन कितना है? देन नेक्स्ट इज कास इज क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन स्कीम तुम्हारी कितनी है? कास्ट के बाद नेक्स्ट चीज आती है सीएमए, दैट इज क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज। देन ये चीज़ों के बाद ये 248 पेज पे वी गो। 248 पे वी हैव अदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू फंक्शनल मैनेजमेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, विच अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रैशनल लीगल। जो थ्योरी रिप्रेजेंट करती है लेजी एम्प्लॉइज को, दैट इज थ्योरी एक्स। और थ्योरी वाई में कौन से एम्प्लॉइज होते हैं? हु आर वेरी एक्टिव एंड वेरी एंगेजिंग, वो आते हैं थ्योरी वाई में। Then next we have which part of BCG metric shows low share business within high growth market requiring high cash to hold share। ये आता है स्टार्स में। एक होते हैं स्टार्स, एक होते हैं क्वेश्चन मार्क, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो स्टार्स होते हैं वो बीसीजी मैट्रिक्स में आते हैं। अब बीसीजी मैट्रिक्स में हाई ग्रोथ मार्केट रिक्वायरिंग हाई कैश टू होल्ड शेयर में आते हैं हमारे पास। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जब हम इम्पोर्टेंट सीरीज कर ही रहे हैं तो अदर इम्पोर्टेंट सीरीज आती हैं हमारे पास, दैट इज रिलेटेड टू, that we will have is HRP. HRP is Human Resource Planning. Human Resource Planning को मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज दी प्रीलिमिनरी इंटरव्यू स्टेजेस इन सिलेक्शन प्रोसेस। जो हमारी स्टेजेस होती है सिलेक्शन प्रोसेस की, उसे हम प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कहते हैं। देन नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हमने देखना होती है ड्यूटीज ऑफ जॉब। जॉब को एनालिसिस करके ड्यूटीज ऑफ जॉब हमने देख के फिर हमने जो पर्टिकुलर डिसीजन लेना होता है दैट कम्स अंडर ड्यूटीज ऑफ जॉब। फिर हमारे पास है मैकग्रॉगर की थ्योरीज। मैकग्रॉगर की जो थ्योरीज है वो